very good evening, everyone. And once again, welcome back to all of you in this Mahamanthan live session number 7 today. And as you all know that we have conducted so many important sessions in our last few months. But right now, today, our session topic is quite different. Today, we are not going to discuss anything about education. Today, we are not going to discuss anything about student. Today, we are not going to discuss anything about the personality. But right now, we are going to discuss a very important and one of the crucial topic of our India. That's the fashion. So before to start this topic, आई जस्ट वांट टू से कि बहुत सारे लोगों ने पर्सनली मुझसे पूछा कि सौरभ सर टीचिंग के साथ साथ व्हाई दिस महामंथन लाइव। तो मैं सारे लोगों को, जो भी व्यूवर्स इस वक्त हमारा सेशन देख रहे हैं, उन सबको ये बताना चाहूंगा, महामंथन लाइव एक ऐसा पोर्टल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर दुनिया के बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर्स, बेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ कॉर्पोरेट, बेस्ट पॉलिटिशियंस, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट पर्संस ऑफ इंडिया यहाँ पर अपने थॉट प्रोसेस को पूरे इंडिया और इंडिया के अक्रॉस सारे कंट्रीज तक पहुंचा सकते हैं। आपके दो शब्द किसी एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके एक आइडिया को पूरे इंडिया एक्सेप्ट कर सकता है और उसको फॉलो कर सकता है। बिकॉज हम सब जानते हैं कि वी आर ऑलवेज बिजी इन अवर डेली लाइफ। कोई अपनी जॉब में बिजी है, कोई अपने बिजनेस में बिजी है, राइट, कोई अपनी फैमिली के साथ बिजी है। तो बहुत बार आपने खुद फील किया होगा कि हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है लेकिन हम उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं रहता उन सब चीजों के लिए। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द रेस्पेक्टेड गेस्ट टुडे जो आज अपने इस वैल्यूएबल टाइम के साथ यहाँ पर आए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू वेलकम अक्षय शर्मा सर। अक्षय सर, वेलकम इन दिस सेशन इन महामंथन लाइव, राइट। Akshay sir, he is our academic head in Studygenics India Private Limited, and Akshay sir is one of the reputed faculty of science of physics and chemistry of entire New Delhi and NCR. In between, I want to welcome Astha ma'am. Astha ma'am, welcome in this Mahamanthan live session. She is one of the best faculty of English in entire New Delhi and NCR, and I also worked with Astha ma'am, so I know the energy level of ma'am and the student connect. We have Varun Sharma sir. Varun Sharma sir, welcome in this Mahamanthan live. Varun Sharma sir, he is currently working as an assistant manager with EY, Ernst & Young, and he is currently looking for the US education system, both pre-K and higher education markets. So first of all, thanks to all of you, and one and only Gagan sir is also here. He is our founder of this Mahamanthan Life and one of the best faculty of mathematics of entire country. सो वंस अगेन मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार, और आप सबका बहुत शुक्रिया देना चाहता हूं कि आप सबने 5 मिनट नहीं, आज आधे घंटे हमें यहाँ पर देने हैं अपनी जिंदगी के, और आपके जो आइडियाज आज आने वाले हैं रिलेटेड टू फैशन, वो हम सब के लिए और पूरी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अक्षय सर, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। अक्षय सर, हम हमेशा जब बाहर कभी घूमते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं या अपनी खुद फैमिली में कई बार ऑब्जर्व करते हैं, अक्षय सर हमें नहीं लगता कि आज फैशन हम सबकी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। आई नो आपका भी एक छोटा सा बेबी है और आप भी एज अ पेरेंट उसको बेस्ट पेरेंटिंग देने की कोशिश करते होंगे। तो अक्षय सर, आपकी जिंदगी में फैशन का क्या रोल है, कुछ जानना चाहूंगा आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग एवरीवन हियर। इफ वी टॉक अबाउट फैशन, राइट, so I'm not much into this because I am a strong believer of rude personality. And as you all know, especially I'm like from the day one associated with Saurabh sir, but still yes, this is something which is untouched. Any life is not something which is untouched from fashion, right? If we start from the day one child starts taking a step to the last journey, everyone is running behind this, and in fact it is something like every second person have opinion about us, the way what we wear, the way what we in fact it hardly matters what is there at your home, but what matters is what you are wearing, right? If in case of male, like in myself, if I just want to tell you, like if it is the accessories, suppose, so I'm a very fond of a few accessories, like Armani is there, like Rado is there, like Swiss made is there. So these are some things, the expensive one, and I'm also not the untouched with this. Right. Though I'm a rude person, but still I'm not untouched with this fashion and all, because everywhere, every person keep on a track, or whenever we comes in front of that person, the first thing comes in your mind is what we are reflecting. Okay. Right. So everything starting from our appearance to the way we come up, to the way we greet them, everything is included as a fashion. Okay. Right.
And if I talk about my family, my wife is much into this. Every day she is keep on just thinking something like new. And my kid is not that like child is not that much he's not into that case he can say something because he's just Okay. 1 year and few months. But still, Okay. when we go out, we also take care of that thing. He either matching with me or matching with her, with his mama, right? So Okay. that is also a part of fashion, what Okay. we So can Akshay say sir, here. मतलब in terms of fashion, मतलब are you following any specific brand in your family in terms of the family Sir, specifically? if I talk about any brand, तो मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि कोई एक particular brand मैं follow कर रहा हूँ, but हाँ ठीक है, whatever I find like it depends on कि mood क्या है. Sometimes I go for the LP, that is shirt. If I want to purchase, I can go for LP. If it is jeans, I can go for wrong. So Okay. there is no particular brand, but yes, still it depends. Like what Okay. is there in my mind. Okay. So Astha ma'am, am I audible, Astha ma'am? Yes. Yes, sir. Okay. So Astha ma'am, Yes, sir. related to Sure. this Yes, sir. topic. You're audible. Okay, so related to this topic fashion मैम, आपके अकॉर्डिंग क्या आपकी लाइफ में इज देयर एनी कनेक्ट ऑफ फैशन? क्या आपके एंड से अगर मैं पूछूं कि आस्था मैम के अकॉर्डिंग फैशन क्या है या कितना हद तक आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, राइट, बीइंग एज अ गर्ल, क्या आपकी मैं कुछ जानकारी ले सकता हूं उसके लिए? Yes, sir. So the irony of the fact is, I have never really, associated this term fashion with, I've never really associated myself with the generally accepted notion of fashion. You know, Okay. wearing. आई थिंक मैम नेट आई थिंक थोड़ा सा आपका डिस्कनेक्ट हो रहा है क्या? And going out, doing different area po. Okay. Yes, yes, Hello. yes. Yeah, it's audible. Yeah. Anji. So what I believe fashion, according to me, I think fashion is when I feel, my comfortable best, whatever I wear. You know, if I don't feel eased out in that, if I don't feel comfortable in that, if I associate some kind of nervousness or, some kind of anxiety with that, I think that's not fashion for me. Whatever I wear, I have to carry that, sense of confidence. And it doesn't come with a certain brand, so to say, कि आपने ये brand पहना है तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो. Okay. ब्रांड देखता नहीं है सर. जो भी आप पहन रहे हो 90% आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करती है. इस समय हम सब यहाँ बैठे हैं, हमें नहीं पता कौन क्या ब्रांड पहन के बैठा है. वी नेवर नो. जो आप रिफ्लेक्ट करते हो, एक तरीके से मैं ये कहूँ अगर सिंपल भाषा में, तो इट्स बेसिकली योर पर्सनालिटी दैट्स रिफ्लेक्टिव ऑफ द ब्रांड मे बी दैट यू वेयर. आज अगर आप एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, सपोज आप किसी भी रैंडम मार्केट जाते हैं, मैं ये कहूँ सपोज पालिका बाजार जी. सेड कि वहाँ पे बहुत कोट एंड कोट चीप क्लोथ्स मिलते हैं. सपोज इफ यू आर रणबीर कपूर, वो जाकर आप खरीदते हैं तो वो एक तरीके से फैशन बन जाएगा कि रणबीर कपूर ने ये चीज खरीदी है तो फैशन है. तो डिफरेंस कहाँ लाई करता है कि आप अपने आप को इस दुनिया के सामने कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं. Okay. So fashion to me is which actually makes you feel your comfortable best, which actually brings out the best in you. तो मैं उस चीज को फैशन मानती हूँ. मेरे लिए आज सच कोई ब्रांड क्वेश्चन मैटर नहीं करता. जो चीज मुझे लगता है मुझ पे अच्छी लग रही है, जिसे पहन के आई एम बीइंग एबल टू पुट फॉर्थ दैट कॉन्फिडेंस दैट आई एम वेयरिंग, आई थिंक दैट्स फैशन फॉर मी. मैं ये मानती हूँ सर. Okay, that's great, ma'am. Great to listen. Varun sir, I'm literally waiting for your view about this fashion. So Varun sir, yes. Likewise, all the thoughtful minds have shared their thoughts on it. मैं एक छोटी सी एक बात कहना चाहूंगा. मेरे को नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी विदाउट फैशन रह सकता है. मैं, if you allow me, I want to share my screen. Yes, yes, please sir. है ना. So एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन मैंने करा कि ये क्या है जो हम फैशन की बात करते हैं, ये सब क्या है. फैशन देखिए, एक तरफ मैंने फोटो लगाई है मोहनजोदाड़ो के टेरिकोटा की, और एक तरफ पेरिस में मॉडल्स रैंप वॉक कर रहे हैं जी. तो फैशन जो है वो तब से लेकर अब तक चल रहा है और आगे तक चलेगा. राजा हो या कोई एक गरीब आदमी हो, उसको ये लगता है कि यार मैं कुछ ऐसा पहनूं कि मेरे को, मैं कंफर्टेबल रहूं और मैं अच्छा दिखूं. अब जैसे राजा जो होगा उसको लगेगा कि हाँ भाई मेरी वाहवाही हो, और जो नॉर्मल आदमी होगा उसको लगेगा कि मेरे पॉकेट के अंदर आ जाए.
जी। तो फैशन की हर डेफिनेशन अलग अलग जॉनर में अलग अलग है जी। और हिस्टोरिकली हुआ ये है कि फैशन भी डेवलप होता है। अगर हम आज जैसे हम बात कर रहे हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनको एक छोटा सा एक अपडेट देना चाहूंगा। जो फैशन है अब वो 3 डिवीजन में बट गया है। फैशन पहले तो होता है जो हमारा क्लासिक फैशन, जो आपका एथनिक वेयर होता है, आपके रीजनल वेयर होते हैं, और फिर आ जाता है स्टेटस सिंबल फैशन, जो कि सर बता रहे थे, गुच्ची हो गया, अरमानी हो गया, तो वो सारी चीजें आ गई। जो थर्ड चीज जो आजकल हम लोग फेस कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से शुरू हुआ और आई थिंक पोस्ट 2000 इट हैज बूम्ड, व्हिच इज कॉल्ड फास्ट फैशन। हम लोग क्या कर रहे हैं, कपड़े खरीदते हैं छोड़ देते हैं, कपड़े खरीदते हैं छोड़ देते हैं। एवरेज अमेरिकन एक साल में 63 क्लोथ्स दे देते हैं, आगे भेज देते हैं, दे थ्रो इट अवे। सो एंड ये इंडिया का नंबर अगर मैं लेके चलूंगा तो इट इज कमिंग आउट अराउंड 40-42। सो द नंबर इज इंक्रीजिंग। और ये जो फास्ट फैशन का जो ट्रेंड है, आपने देखा होगा, आप दादाजी हमारे, मम्मी पापा हमारे, वो लोग कपड़े खरीदते थे तो वो लगता है कि यार ये कपड़े चले जी। बट अब हम लोग ऐसे कपड़े नहीं लेते हैं। हम लोग लेते हैं, साल 2 साल चला, उसके बाद थ्रो कर दिया। हमारे व्यूअर्स को ये थॉट प्रोसेस एक डेवलप करना पड़ेगा दैट दिस फास्ट फैशन इज टेकिंग द अर्थ इन अ वेरी रॉन्ग वे। whatever things we are getting from it, we will not be able to recirculate it, and there will be a time जब कपड़ों पे भी नंबर लगेंगे कि इतना आपके लिए राशन है, इतना ही कपड़े ले सकते हो एक साल के। जी। that time is not far away, seeing the numbers. So likewise एक छोटा सा एक स्टडी के ऊपर मैंने जो काम कर रहा था, तो मैंने कहा let's share with you guys that textile and clothing industry is the second largest polluting industry in the world. Correct. It takes around 20,000 liters to make 1 kg of cotton. जो raw cotton से process में आता है, it takes this much amount of water, which is around 17 to 20% of total global water pollution. एंड अगर हम लोग बात करें रिसाइकलिंग के लिए, रिसाइकलिंग के अभी कई सारे ऑप्शंस अभी बने नहीं हैं। होता ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज से सामान मंगाते हैं। अब आप देखोगे बड़ी बड़ी ब्रांड, मैं एक सिंपल सा मतलब ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक स्पोर्ट्स ब्रांड है जो कि बहुत सारी चीजों के कपड़े बनाती है, उसके ज्यादातर कपड़े या तो बांग्लादेश बनते हैं या इंडिया बनते हैं। तो ये ऐसा हो रहा है कि यूरोपियन और यूएस कंट्रीज जहां पे ब्लीचिंग और डाइंग अलाउड नहीं है, वो सारे के सारा अपना लॉट इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम ऐसी कंट्रीज में डाल देते हैं, सो दैट उनकी रिवर्स वगैरह साफ रहे और हमारी रिवर्स खराब होती जाए। ये रिवर्स के ऊपर भी आगे आगे मैं साथ साथ इस पर अपडेट करता रहूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हमें अभी से अगर टेकल नहीं करा तो it will be a big problem after few years. अक्षय सर, वरुण सर, गगन सर और आस्था मैम, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते हैं, एक बार जो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूंगा, लोग कहते थे कि भाई जरूरी नहीं कि तुम 10,000 या 1 लाख का कुर्ता पैजामा पहनो, तुम वैसे कपड़े पहनो जो तुम्हारे शरीर पे अच्छा लगे। राइट। मतलब आई थिंक आप लोगों के अभी हमेशा बाबा दादा नानी लोगों ने हमेशा बात बोली कि जरूरी नहीं कि हम लाखों रुपए कपड़े पे खर्च करते सिर्फ दिखावे की वजह से कि भैया आज सौरभ शुक्ला ने कपड़े पहने, अक्षय सर ने ये कपड़े पहने। आई थिंक फैशन मेरी नजर में ये भी है, अभी जैसे आस्था मैम भी कह रही है कि जरूरी नहीं कि हम बहुत ज्यादा उस पर इन्वेस्ट करके, हम सब एक ऐसा कपड़ा, राइट, एक ऐसे ट्रेंड को भी फॉलो कर सकते हैं जो हमारे शरीर पे अच्छा लग सकता है। आप लोगों ने हमेशा नोटिस किया होगा, लोग लाखों लाख रुपए खर्च कर देते हैं और आप विश्वास नहीं मानोगे, जब वो पहनते हैं उस कपड़े को तो जो सामने वाला होता है वो पीठ पीछे मजाक कर रहा होता है, यार कैसे कपड़े पहने, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सामने वाले ने लाख रुपए खर्च कर दिए और पीठ पीछे लोग कह रहे हैं कि यार कैसे कपड़ा पहना, मजा नहीं आई। तो जस्ट टू ऐड ऑन दिस, आज की मेरी आप शर्ट देखिए, इट्स ग्रीन, ठीक है। I bought this shirt from Max around 1.5 years ago. जो पहला लॉकडाउन लगा था उससे पहले जी। और ये क्लोथ जो है जिसका बना हुआ है, ये रिसाइकल्ड है या इसमें मतलब ये स्पेसिफिक एक उन्होंने एक सेक्शन निकाला था जिसके अंदर आप ये इसका मतलब CO2 लेवल जो है वो बहुत एमिशन बहुत कम है।
आई बॉट दिस, और मैं इसके लिए मैंने सोचा था कि किसी दिन पहनूंगा, एंड स्पेशली मैंने आज ये शर्ट आज पहली बार पहनी है कि दिस इज द डे दैट फैशन नीड टू बी अलाइन्ड विद ह्यूमन कॉन्शियसनेस। जी, That's true, absolutely. That's true. अक्षय सर, आपका एक छोटा सा किड है, आपका बेटा है, और आई नो कि आप एक बेस्ट फादर हो उसके लिए। क्या इतनी छोटी सी उम्र में क्या वो कभी कुछ डिमांड करता है किसी एक फैशन से रिलेटेड किसी ट्रेंड को, या फिर आप उसकी डिमांड को पूरा करते हो? आपने कभी फील किया हो इस चीज को कि माय सन इज आल्सो डिमांडिंग इन टर्म्स ऑफ फैशन? सर यहाँ टू थिंग्स व्हाट आई वुड लाइक टू से हियर। वन, कि अभी ही इज नॉट इन दैट प्रोसेस कि वो कुछ डिमांड कर सके, बहुत ही छोटा है। सेकेंडली मेरे घर में मेरी वाइफ इज समथिंग जो कि बिल्कुल गगन सर के रूट को फॉलो करती है। शी इज बेसिकली स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ माइथोलॉजी, एंड यही रीजन है उसका भी दो, जैसे द डे यू हैव सेंड मी द इनविटेशन, तो आई वाज सिटिंग विद हर, उसने बड़ा छोटी सी बात कही थी कि सिंपल सा एक लैंग्वेज देखो कि एक बंदे ने 70 लाख खर्च किए हैं एक गाड़ी परचेज करने के लिए, राइट? आप उसको ऐसे देख रहे हो कि वो बंदा 70 लाख की गाड़ी में आ रहा है, मैं उसको ऐसे देख रही हूँ कि अगर इसके पास में 2 करोड़ रुपए थे तो इसने 70 लाख तो वेस्ट कर दिए जी। अब इसके पास बचा क्या? 1 करोड़ 30 लाख। ये वही 70 लाख की गाड़ी ना लेके एक 7 लाख 8 लाख की गाड़ी ले सकता था और बाकी के 42 लाख को किसी एक अच्छे काम में लगा सकता था। लेट्स सपोज वो कोई फ्री स्कूलिंग कर दे, लेट्स सपोज वो किसी अभी इन द प्रीवियस केस हमने देखा था लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों के पास इवन इतने सोर्सेस तक अवेलेबल नहीं थे कि दे कैन अफोर्ड देयर डेली मील, तो वही कर दे। तो उसके हिसाब से और इन कमिंग फ्यूचर आई डोंट थिंक शी विल अलाउ दिस थिंग। वो बहुत ही कंजर्वेटिव है, बेसिकली शी इज फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, तो उसका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है कि अगर अपनी डिमांड को हम सिर्फ क्या कर सकते हैं सर, जरूरतें पूरी कर सकते हैं, ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती। तो वी हैव टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर वे, और मुझे नहीं लगता कि मैं भी सर कभी उसे अलाउ करूंगा जस्ट टू गो ऑन दिस, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन मी कि मैं उसे क्या बनाना चाहता हूँ, राइट? और अगर मैं फैशन के टर्म्स में ही बात करूंगा तो आई वुड लाइक टू टेल हिम दैट रियलिटी कि दिस इज समथिंग, देयर इज नो वन गोइंग टू जज यू व्हाट यू आर just spending. It is your family. You have to have a family behind to feed on. इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने कितना रुपया अपनी वॉच में खर्च कर दिया या कहाँ खर्च कर दिया। It ultimately depends. Suppose आपके घर में एक sudden medical emergency आ जाती है जी, और उस medical emergency के लिए if I have protected my family, तो I'm particularly a strong believer of fashion. मुझे पता है कि भाई मैं every day उसके लिए रेडी हूँ, और same is there with my family जी। तो आई थिंक सर ये बहुत बड़ा सा आंसर हो गया आपके छोटे से नहीं सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला है सर। इनफैक्ट बिल्कुल सही बात बताइए सर, घड़ी 1.5 लाख की खरीदो या 1000 रुपए की, टाइम सब एक ही बताएंगे। एग्जैक्टली। और आजकल अक्षय सर, यस आस्था मैम। जी मैम। यस मैम प्लीज। सर एक्चुअली वन ऑफ द रीजंस कि आज के टाइम में लोग इतना फैशन सोसाइटी हैज कि जो भी ट्रेंड्स आज के टाइम पे चल रहे हैं, सो वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स अपडेटेड विद दैट कि जो भी आज की सोसाइटी में पहना जा रहा है जस्ट फॉलो दैट। तो कभी कभी ऐसा होता है दैट वी आर लूजिंग ट्रैक ऑफ आवर ओन सेल्व्स, ट्राइंग टू बी वन ऑफ दोज। हम अपनी एक जो इंडिविजुअलिटी होती है उसको पूरी तरीके से छोड़ रहे हैं, और हम इतने ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं कि हम इमिटेट करे जा रहे हैं दूसरे लोग। करेक्ट मैम, वी गॉट योर पॉइंट मैम, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गगन सर, इन बिटवीन आपसे भी मैं जानना चाहूंगा। गगन सर, व्हेन आई विजिटेड साउथ इंडिया, आस्था में थोड़ा सा मुझे लगता है डिस्कनेक्ट आ रहा है, एक बार आप नेट चेक कर लीजिए प्लीज। गगन सर, am I audible to you? Yes. Okay. When I visited South India, या आपने भी, जैसे आप सब लोग, वरुण सर, अक्षय सर, आपने अगर साउथ इंडिया विजिट किया होगा, वहां पर जाने के बाद एक बात मैंने नोटिस करी कि लोग इतने हाईली एजुकेटेड हैं, नॉलेज में कोई कमी नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा पहनावे उड़ावे में उन्होंने ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। उनको मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सी कंपनी की वॉच खरीद रहा हूँ, मैं कौन सी शर्ट पहन रहा हूँ। तो when I compare the New Delhi UP and when I compare with UP and New Delhi with the South India, तो वहां पर सर बहुत ज्यादा फर्क मुझे दिखता है। अक्षय सर, गगन सर, आपको कुछ इसमें क्या कहना है, क्या डिफरेंस है सर?
बिल्कुल सर, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। मेरी आवाज आ रही है सर आप? जी जी बिल्कुल आ रही है सर, कंप्लीटली ऑडिबल। पहले तो सर मैं वरुण सर से बहुत सहमत हूँ, जिन्होंने स्टार्टिंग में बताया फैशन के बारे में कि हम फैशन से एक तो घिरे हुए हैं, हम फैशन को छोड़ नहीं सकते। देखिए एक जमाना होता था सर, आपको याद होगा, बेल बॉटम पैंट आती थी एक, याद है आप सबको? 90s। हाँ, वो 90s में तो हमने भी उसको पहनी, लेकिन आजकल के बच्चे नहीं पहनेंगे उसको, क्योंकि आज वो फैशन ही नहीं है ना? तो हम फैशन से एक तो घिरे हुए हैं, हम फैशन जैसे जैसे चेंज होता रहेगा, इंसान वैसे वैसे चेंज होता रहेगा, लेकिन फैशन को हम सक्सेस से नहीं देख सकते। जैसे आपने कहा कि जो साउथ के लोग हैं कि वो फैशन ज्यादा नहीं करते, लेकिन आज की डेट में आप आईएएस ऑफिसर देखो, साउथ से काफी सारे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि फैशन करोगे तभी कोई सक्सेस आपकी हाथ में आएगी। फैशन तो कोई नहीं भी करे तब भी वो लाइफ में सक्सेस पा सकता है, और करे वो भी पा सकता है। बस एक चीज मैं थोड़ा सा, जो सबने बोली अपनी अपनी जगह, जो मुझे लगता है कि फैशन करे ठीक है, लेकिन फैशन एक सार्वजनिक मर्यादा को ना लांगे, एज पर मी, कि अगर हम फैशन कर रहे हैं मतलब कि क्या वो समाज के लिए ठीक है, क्या हमारे बच्चे उसको एक कहीं बिगड़ तो नहीं रहे उस फैशन के कारण। ये हमें अपने देखो हमारा हिंदुस्तान, देखो एक हमारा जो इंडियन कल्चर है, हमारे जो एटिकेट्स हैं, हमारी जो संस्कार हैं, हमारे जो वैल्यूज हैं, क्या हम वो दे पा रहे हैं अपने बच्चों को? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने गलत फैशन के जरिए हम बच्चों को गलत शिक्षा दे पा रहे हैं? तो ये भी हमें देखना होगा। फैशन करें, आज गर्मियों में देखो अलग टाइप के कपड़े होते हैं, सर्दियों में अलग टाइप के कपड़े होते हैं, लेकिन हमें अपने बच्चों को, बिकॉज एज अ पेरेंट, हम सब पेरेंट्स हैं, हमें अपने बच्चों को एक सही फैशन भी सिखाना होगा कि बेटे ये फैशन है, ये नहीं फैशन है। अब कई बच्चे अब जैसे मैम है, आस्था मैम बैठी हैं, वो भी इस बात को शायद एग्री करेंगे कि आजकल जो कॉलेजों में और एक नया ट्रेंड चला हुआ है, और मतलब अब इसमें एक कटाक्ष की बात है सर, मतलब मैं इसमें थोड़ा सा, जो अपने आप को अंग प्रदर्शन ज्यादा हो रहा है आज की डेट में, और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर खूबसूरत ही दिखना है तो एक अच्छा फैशन, अच्छे कपड़े पहन के भी खूबसूरत दिखा जा सकता है, इंस्टेड ऑफ अदर क्लोथ जो हम आज की डेट में हम देख पा रहे हैं। वैसे ये एक डिबेट का इश्यू है, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इस काउंटर में आप आंसर दे सकते हैं। अच्छा, इन बिटवीन अक्षय सर, आस्था मैम, या इस बार एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, यहाँ पे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे गगन सर ने बोला कि हो सकता है कि किसी एक टॉपिक को लेकर के हमारे आपके विचार ना मैच करें, हो सकता है वरुण सर का अपना एक थॉट प्रोसेस है, अक्षय सर का अपनी एक सोच है, आस्था मैम कुछ और। तो अगर आपकी वो थॉट प्रोसेस है तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे और आप उसको यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं। यस आस्था मैम, आप कुछ कह रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल मैम, हाँ जी सर, मैं ये मानती हूँ कि मेरी में कुछ ऐसा नहीं है। इंसान का पहनावा उनकी खुद की सोच है। मैं इतनी लिबरल हूँ कि मैं ये चीज नहीं मानती कि क्या इंसान एक्सेप्ट करता है फैशन और क्या नहीं। मेरे लिए फैशन की शायद डेफिनेशन कुछ और हो, किसी और के लिए कुछ और हो। एंड मुझे लगता है मेरे पास ये राइट नहीं है कि मैं सामने वाले को बोलूं कि हाँ ये फैशन की सही डेफिनेशन है। मतलब वी ऑल आर ग्रोन, we all are mature, we know what is right, what is wrong for us, and we have no right to dictate somebody else on these grounds at least. अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप उनकी फ्रीडम भी कर्टेल कर रहे हैं, और मैं इस मामले में थोड़ा सा अलग हूँ। मैं हाँ जी सर, आई एग्री बिल्कुल आस्था मैम, मैं इस बारे में आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे पता था ये सवाल वापस आना है मेरे पास। देखिए मैंने एक शब्द यूज किया, सार्वजनिक मर्यादा। जी जी। अब नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सार्वजनिक मर्यादा? सपोज आप मुझे पता नहीं, आप वैसे आपकी एज तो मुझे कम ही लग रही है, आप मैरिड हैं मैम? पूछना चाहता हूँ। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, अभी तक तो बच्चे हुए। तो अब जैसे मान लो मेरी वाइफ है, देखो जब मैं और वाइफ कभी गोवा घूमने जाते हैं तो मैं उसे कहता हूँ कि यार तू मुझे ना ये सूट वूट मत पहन, तू आराम जो अपना आज का फैशन चल रहा है ना वहाँ पे वो पहन के मेरे सामने आ, मैं उसे कहता हूँ। मेरी वाइफ और मैं लेकिन अगर मेरी वाइफ मेरे डैडी मम्मी के साथ जा रही है ना, अगर मेरी वाइफ वो अपने सास ससुर के साथ जा रही है, तब उसको उस सार्वजनिक मर्यादा का पालन करना पड़ता है। ये हमारे इंडिया के एटिकेट्स हैं, ये हमारे इंडिया के संस्कार हैं जो हमें मिले हुए हैं। अगर हम अपने संस्कारों से बाहर जाएंगे तो देखो आज की डेट में अमेरिका, आप देखिए, मेरे माय फादर आईएएस रिटायर्ड है मैम, और एयरपोर्ट पे उनकी ड्यूटी रहती थी, अब तो रिटायर हो गए। तो मुझे एक बात बोल रहे थे कि वहां के लोग हमारी संस्कृति अपना रहे हैं।
अमेरिका वाले लोग आज की डेट में पूरे कपड़े पहन रहे हैं और हम उनकी संस्कृति, मतलब ये मैं ये फैक्ट है, अगर आप इसको देखें कि आजकल अमेरिका ये देख रहा है कि इंडिया वालों के जो एटिकेट्स हैं, संस्कार हैं, उनको बहुत अच्छे लग रहे हैं कि यार यहाँ तो रिश्तों की कदर है, यहाँ तो सास ससुर के आगे एक थोड़ा सा हमें, भाई देखो मैंने आपसे कहा कि जैसे गोवा में गया तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि भाई तू कोई भी कपड़े पहन, कोई टेंशन नहीं है, हम समुद्र एरिया में घूमेंगे, सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैं और मेरी वाइफ जा रहे हैं, लेकिन अगर मेरी वाइफ के सामने उसके सास ससुर हैं, है ना, अगर वो डैडी मम्मी है, तो वहां हमें इस चीज का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना कि आप एक बड़े के आगे, मतलब मैं पर्दा सिस्टम के वो नहीं कर रहा कि पर्दा बैठ के आ जाए या वो घूंघट ओढ़ ले, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा इस चीज को, लेकिन एक हमारे जो संस्कार उसका तो पालन करना चाहिए एक इंसान को, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। गगन सर एक छोटा सा पॉइंट है, जस्ट टू ऐड ऑन हियर, यहाँ मैं आस्था मैम से कंप्लीटली एग्री करता हूँ। इट इज इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस, वी कैन नॉट इम्पोज। माइट भी आपको लगता है कि माइट भी आपको ये आपका कहना एकदम सही है, आप उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अगर मैं वही चीज अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मेरा कहना ये है कि जब मेरी सिस्टर मेरे मम्मी पापा के सामने अपनी पसंद से रह सकती है तो मेरी वाइफ क्यों नहीं, राइट? शी हैज अ राइट, वी आर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड शी हैज ऑल द राइट। जितना मेरा राइट है उतना ही उसका राइट है। इट इज जस्ट दैट कि वो उस घर की बहू है, डजंट मीन कि हम उस पे अपनी थॉट प्रोसेस इंपोज करेंगे। बेसिकली पेट्रियार्कियल जो एटीट्यूड है वो इंपोज कर रहे हैं। मैं ये तो ये तो हमारा आई थिंक ना पॉइंट ऑफ डिबेट ही एक अलग हो जाएगा, अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। फैशन से हट गए हैं हम। फैशन से पूरा बेस्ट पार्ट इज टू सही फैशन सर, हाँ, यहाँ पर वरुण सर को देख के लग रहा है कि बहुत कुछ वो बोलना चाह रहे हैं, लेकिन वो अपने नंबर का वेट कर रहे हैं। वरुण सर कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी सर, देखिए यही जब से ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ अलग अलग तरह के थॉट प्रोसेसेस मैच कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरा अभी तक जो फैशन का थॉट प्रोसेस यही रहा है कि ये बहुत बुरी हालत कर रहा है अर्थ की, रिवर्स की। एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा मैं। त्रिपुर एक शहर है, बहुत बड़ी एक मतलब क्लोथिंग इंडस्ट्री बन गई है। छोटा सा गांव था एंड सडनली विदिन 2 डेकेड्स ये बहुत बड़ा एक हब बन गया जहाँ पे कपड़े बनते हैं, ब्लीच होता है, डाई होती है। कावेरी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है नेओल रिवर, जो कि इस गांव के बीच में से बहती थी, अब शहर हो गया। अब वो सर इंडिया का 90% एक्सपोर्ट यहाँ से होता था और 40% जो अनस्यूड कपड़े होते हैं वो यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते थे। तो जितने भी ग्लोबल बड़े रिटेलर्स हैं, जितने भी बड़ी ब्रांड्स हैं, यूएस की, यूरोप की, उन सबके ऑर्डर्स यहीं से आते थे जी। और आज वो रिवर बिल्कुल डेड हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जितना केमिकल, जितना सारा कूड़ा कचरा है वो सारा रिवर में डाल दिया, रिवर मर चुकी है। और अब ये हो रहा है कि आसपास जितनी खेती वगैरह सब कुछ होती थी तो वो सब डाई होती जा रही है। पहले वो 7-8 तरह की क्रॉप्स उगा लेते थे, बट अब वो कोकोनट उगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब कोई वेजिटेबल, कोई दाल दूल कुछ नहीं उगती। तो मेरा थॉट ये है कि इस प्लेटफॉर्म से हम लोगों को ये भी बताएं कि आप फैशन करो। हम लोग फैशन को रोकना नहीं चाह रहे, या इस डिस्कशन का पॉइंट ये नहीं है कि फैशन की वजह से जी ये सब खराब हो रहा है। आप फैशन करो बट सस्टेनेबल करो, या तो ऐसी ब्रांड सिलेक्ट करो कि अगेन आई विल शेयर माय स्क्रीन फॉर सम टाइम एंड इफ यू अलाउ सर। जी जी जी। सो हो ये रहा है सर, इट्स अलाउड सर। ओके, हो ये रहा है सर कि अब जो फैशन हम करते हैं वो हमारा फूड चेन में भी एंटर करे जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको एक नेओल रिवर का एक एग्जांपल दिया। होता क्या है, ये देखिए लेफ्ट साइड में जितना भी ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन आपको दिख रहा है, लेफ्ट इमेज, ये बेसिकली ब्लीच के अगर अनप्रोसेस्ड रिवर के अंदर डाल दिया जाए तो वो पूरा रिवर को खराब करता है। और जहां जहां रिवर बहती है वहां उसके साथ जितने भी खेत, गांव सब लगते हैं, वो सब धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, फिश और एक्वाटिक लाइफ के लिए भी बहुत डेंजरस है। एयरबॉर्न जो इसके फ्यूम्स होते हैं, जो वेस्ट होता है, जो डस्ट होती है, अलॉन्ग विद नॉइस, वो आप सबको पता ही है कि क्या शहर के अंदर आ रहा है। तो मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि हम लोगों को, बच्चों को स्पेशली ये एजुकेट करना है कि आपको सस्टेनेबल लिविंग के अंदर एक
पार्ट लेना चाहिए। एक इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल स्वीडन ने भी दिया और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहूंगा कि स्वीडन ने क्या किया। उन्होंने 22 थ्रिफ्ट स्टोर्स खोले। बेसिकली क्या है कि जैसे हमारे यहाँ H&M, मैक्स, एक्स, ज़ारा, ये वो सारे स्टोर्स होते हैं, स्वीडन के अंदर एक तरह का पायलट रन था जिसमें गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया। आई थिंक उन्होंने करा ये कि 22 जगह ऐसे स्टोर्स खोले कि जिन लोगों को कपड़े नहीं पहनने वो अपने कपड़े ले जाके वहां जाए और उसके आपको जो भी उसका एक्चुअल प्राइस होगा 20 से 30% आपको वापस मिल जाएगा। वो लोग सिलेक्ट करेंगे ऑब्वियसली और वो वापस मिल जाएगा। तो 22 स्टोर ने 1500 टन CO2 एमिशन एक साल में बचाया। ये एक घर को 135 साल तक इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है, ये इतना CO2 है। तो ऐसे ये जो पूरा जो पायलट रन था, ये थ्रेडअप करके कंपनी है जो कि बाहर कपड़े बेचती है। It competes with eBay and one more brand, I don't remember the name. Yeah, Poshmark. तो ये लोग बेसिकली ये करते हैं कि ऐसे स्टोर्स बनाए जाए। क्यों ना हम लोग भी हमारे यहाँ यही कॉन्सेप्ट लेके आए। आप लोग देखिए, आस्था मैम, अक्षय सर, आपके जितने भी दोस्त होंगे वो सब यही करते हैं, कपड़े खरीदे। और ये जब से Amazon और फ्लिपकार्ट शुरू हुआ है इसके बाद तो धनाधन कपड़े आते हैं, नहीं अच्छा लगा वापस ले लिया, 3-4 महीने बाद दे दिया। तो उसको एक पूरा प्रोसेस बनाया जाए जिसके अंदर एक पूरा सेटअप, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे ये वो स्टेट लेवल का हो या आपके अपने लेवल का हो, इसको स्टार्ट करके ये स्टार्ट करा जाए और इसमें फिर ऑनलाइन स्टोर भी बनाया जाए। जिसको खरीदना ऑनलाइन खरीद लो। सो दिस इज माय आइडिया कि हम लोग किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इंडिया में। Great idea sir. And in fact sir would like to connect with this thing later on personally even. Sure sir. Because it is something, an entrepreneurial idea which we can just start something, right? Sure. And then we can just see what are the areas of opportunities and we can obviously work upon this. Let's hope sir we start a new company from here. Yes, we can. तो आस्था मैम ने जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई, मैं उनकी एक बात से एग्री करता हूँ यहाँ पे, कि मुझे लगता है कि हमारे सामने वाला जो बंदा है उसका अपना एक थॉट प्रोसेस है। और मुझे लगता है कि जब आप कुछ सोचते हो तो आप अपने एंड से सही सोच रहे हो, मैं अगर कुछ सोच रहा हूँ तो मैं अपने एंड से सही सोच रहा हूँ। तो हर एक का एक थॉट प्रोसेस है फैशन को लेकर। वरुण सर ने जो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताई उससे एक चीज प्रूफ हो गई, गगन सर ने जो एक बात बताई उससे एक चीज प्रूफ हो गई, अक्षय सर ने जो बताया कि हर चीज के दो पहलू हैं। अगर किसी चीज के कुछ पॉजिटिव्स हैं, राइट, ऊपर का जो ग्लैमर है, फैशन का ऊपर का जो ग्लैमर है, उसके कुछ लीथल इफेक्ट्स हमारे वरुण शर्मा सर ने बताया कि उसके लीथल इफेक्ट्स कहाँ पर है, जो जिनकी नजर, जिनका मतलब जिनके ऊपर हमारे पास ध्यान नहीं जाता कई बार। तो यहाँ पर आस्था मैम का जो पॉइंट है, अक्षय सर का जो पॉइंट है, गगन सर और वरुण सर का जो पॉइंट है, उसको लेकर के मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। आई एम श्योर कि आप उसको देख करके शायद अपने कुछ आइडियाज को जरूर रिलेट कर पाओगे कि दो इंसानों में किस तरह का थॉट प्रोसेस अलग अलग हो सकता है। वरुण सर, अगर आप लोग अक्षय सर एग्री करो तो मैं दिखाऊं। Sure, sir. जी जी Sure. तो यहाँ पर सर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जस्ट अ सेक, मैं स्लाइड को ओपन कर रहा हूँ। क्या ये स्लाइड विजिबल है सर? नहीं सर, अभी नहीं। मैं एक शेयर स्क्रीन, जी मैं शेयर स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, जस्ट अ सेक। नाउ स्लाइड इज विजिबल सर? Yes, sir. जी सर, मैं आप लोगों को कुछ सेकंड्स दे रहा हूँ, मैं आप सबका व्यू जानना चाहूंगा। इन दोनों लोगों को देखिए और मुझे बताइए कि आपका एक इंटरप्रिटेशन क्या है। आई जस्ट वांट टू स्टार्ट फ्रॉम आस्था मैम। सर मेरा एक्चुअली मैं तो इन दोनों को जानती हूँ और इनकी जो हिस्ट्री रही है मुझे पता है। तो आई थिंक अगर मैं सिर्फ पहनावे को देख के इस चीज पे कमेंट नहीं कर सकती जी तो क्या है, पर हाँ पहनावा थोड़ा मैटर करता है कि आप जो भी पहनते हैं जी वो आप उसमें कैसा फील कर रहे हैं। अब इसमें अगर जो भी दोनों पर्सनालिटीज हैं उन्होंने जो भी पहना हुआ है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या सोच के वो पहन रहे हैं। तो मुझे वो अच्छा लगे या नहीं, आई हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू से, आई हैव एब्सोल्युटली नो रोल टू प्ले इन दिस। अगर सामने वाला ठीक महसूस कर रहा है वो पहन के तो दैट्स गुड। अगर मैं कमेंट करूंगी तो दैट मीन्स आई हैव अ जजमेंटल स्ट्रीक ऑफ माइंड एंड आई एम अ वेरी लिबरल वुमन।
So Right. I think मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी. If they think they're happy having worn what they are, so I'm pretty fine with it. तो कैन वी से आस्था मैम कि इन दोनों पिक्स को देख करके हमें प्रूव कर सकते हैं कि दो इंसानों की अपनी एक सोच है और दोनों को मैं बिल्कुल अप्रिशिएट सर, मानते हैं, बिल्कुल दोनों को सोच अप्रिशिएट है, करते हैं. अपना तरीका है, अक्षय अपना सर कुछ कहना चाह लिहाज रहे है. थे. जी अक्षय सर. जी सर सेम आई वाज सेइंग कि हम आउट बाहर अपीयरेंस से नहीं बता सकते कि व्हाट इज गोइंग इनसाइड, जी राइट. इवन द सेम कि आप बंदे की पर्सनैलिटी बाहर से जज करके नहीं बता सकते कि वो बंदा है कैसा. अगर जी इन दोनों में हम एक और बंदे को कंपेयर कर सकते थे, रतन जी टाटा को, जी तो हम वहां भी देख सकते हैं कि दैट इज अ वेरी सिंपल पर्सन बट हिज एक्शंस आर सो ग्रेट कि वो उनके बियॉन्ड देयर आउटफिट है. ऑन द सेम बिल्कुल टाइम यहाँ भी दो बंदे हैं जी जिनका एक्शन आर एंटायरली डिफरेंट. फर्स्ट लुक में लगेगा कि नहीं ये जेंटलमैन बहुत अच्छे बंदे हैं, जी या जस्ट बिकॉज ऑफ देयर अपीयरेंस इट इज लाइक इट रिफ्लेक्ट्स आवर थॉट प्रोसेस कि हम कितना घटिया बंदे हैं. वी आर कमेंटिंग ऑन इट Yes, बिकॉज I इसके will. केस में, राइट, इसके केस में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. हम व्हाट, ये बहुत नॉर्मल सा केस है सर. हम जब भी होते हैं, चार दोस्त भी अगर कनेक्ट होते हैं, तो व्हाट वी यूज्ड टू डू, हम सिंपली किसी पे भी कोई कमेंट पास ऑन करके छोड़ देते हैं. जी बट क्या कभी हम ये देखते हैं कि वो एक कमेंट इज क्वाइट इनफ टू टेल कि भाई मेरी पर्सनैलिटी क्या है? Who the hell I am to judge someone? They can wear anything, sir, as long as Exactly, they don't agree, run sir. away with country's money. बिल्कुल Sir, I बिल्कुल would really want to add on to this because जी I was reading something about Mark Zuckerberg. अगर आपने पढ़ा हो, आप जानते हैं कि वो Facebook के Yes. co-founder हैं. जी उनसे पूछा गया था, आप अगर उन्हें देखें, अभी भी उनका गूगल करें, तो वो हमेशा एक ग्रे कलर की टी शर्ट और एक ही जीन्स पहन के रोज अपने काम पे जाते हैं. बिल्कुल उनके पास ऐसा नहीं है. वी नो लाइक व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज. आई मीन यस, आई रियली होल्ड हिम इन हाई एस्टीम क्योंकि उन्होंने बहुत यंग एज में बहुत सक्सेस हासिल की है, एंड दैट्स नो ऑर्डिनरी फीट. तो वो ये कहते हैं कि मैं ग्रे, ऐसा नहीं है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ये तो कोई सवाल ही नहीं है इस चीज सवाल में. ही नहीं है, वो right. फिर बिल्कुल भी बिल्कुल एक ही ग्रे शर्ट, ग्रे टी शर्ट और हमेशा ब्लू जीन्स पहन के अपने काम पे जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि मैं वही पहन के अपना काम करता हूँ जिसमें मेरी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा निकलती है. अगर मैं करेक्ट अपना मैक्सिमम टाइम इस चीज पे डिवोट करूंगा, दैट व्हाट शुड आई प्रॉब्ली बी वेयरिंग टुडे बिकॉज दिस इज अनदर डे ऑफ वर्क, तो प्रॉब्ली आई एम ड्रेनिंग माय एफिशिएंसी, तो मैं काम ढंग से नहीं कर पाऊंगा. तो ये उनकी मैम, सोच है कि उनके लिए वो चीज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो क्या पहन रहे हैं. ये उनके लिए फैशन है. वो जिसमें अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं वो पहन रहे हैं. बिल्कुल अगर आप फैशन किसी और को भी देख लीजिए, अगर वो डिफरेंट, मतलब कुछ अच्छा डिफरेंट पहन के रोज जाते हैं और उनको लगता है इस चीज में मेरी एफिशिएंसी लग रही है, मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा हूँ, तो वो उनकी सोच है. तो बिल्कुल फैशन की कोई एक जनरलाइज्ड डेफिनेशन नहीं है. इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. मेरे लिए फैशन कुछ और है और आपके लिए कुछ और है. कुछ और है. और कंप्लीटली एग्री. हमारी इतनी राइट भी Agree. नहीं है कि हम कमेंट करें इस चीज पे. एग्री जी एग्री विद आस्था. Yes. बिल्कुल बिल्कुल. अब इनकी देखो बात सर, हाँ, जी जैसे ऐसी एक बात याद आ गई मुझे. बिल्कुल आई एग्री विद कि फैशन नहीं डिसाइड करता कि कौन क्या है बेसिकली. अब जैसे एक चीज मैंने पढ़ रहा था, पता नहीं कहाँ पे, कि एक राजा है. एक राजा ने अगर नकली हीरा भी डाला होगा ना, तो सब कहेंगे ये असली है क्योंकि राजा ने डाला हुआ है. right. लेकिन अगर एक असली हीरा भिखारी ने डाला होगा ना, तो उसे कहेंगे ये तो नकली है. तो कहीं ना बिल्कुल कहीं तो फैशन डिसाइड Right. नहीं करता कई बार. तो अब राजा, आपको पता है, राजा ने, सब लोग कहेंगे राजा तो यार असली डाला होगा, लेकिन डाला उसने नकली है. और जहाँ भिखारी ने असली डाल दिया, उसे वो नकली समझ लेंगे लोग. बिल्कुल. गगन सर, वरुण सर एंड अक्षय सर, मैं एक बार अंबानी जी के बारे में जब पढ़ रहा था आस्था मैम, तो इनके बारे में जब मैंने पढ़ा कि ही इज अर्निंग 2 करोड़ रुपीज मिनिमम इन 1 मिनट, इन 60 सेकंड्स ही इज अर्निंग 2 करोड़ रुपीज. और जहां तक माल्या जी की बात है, मतलब दोनों ही अपने लेवल पे बहुत ग्रेट पर्संस है, राइट. और दोनों के देखिए ना, दोनों के थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग है, राइट. कई बार होता है कि जैसे आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला कि इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, फैशन की कोई डेफिनेशन ही नहीं है. देखा जाए, आप लोगों ने जो भी बताया, मुझे लग रहा है कि आज ये प्रूफ हो गया कि फैशन को कोई डिफाइन ही नहीं कर सकता. एक भिखारी भी बेटा, एक भिखारी भी अपने हिसाब से अच्छा पहनने की कोशिश करता है और उसको भी लगता है कि मैं बिल्कुल अच्छा लग रहा हूँ. एक ऑटो रिक्शा वाला भी अपने बच्चे को अच्छा पहनाने की कोशिश करता है, उसको भी लगता है कि मेरा बच्चा अच्छा दिखे. तो मुझे लगता है कि जैसी जिसकी एक थॉट प्रोसेस, उस हिसाब से उसको फॉलो करता है और फैशन को सामने वाले को. तो मुझे लगता है कि कहीं पर भी इसकी कोई डेफिनेशन हम डिफाइन नहीं कर सकते. और यस, किसी के ऊपर हम कमेंट नहीं कर सकते कि आपने क्यों किया, ये क्यों किया. ये उनकी चॉइस है और उनकी चॉइस पे हमें छोड़ देना चाहिए, राइट. जी अक्षय सर कुछ कह रहे थे आप बीच में. I agree with you, sir. जी Completely agree with this statement.
तो आस्था मैम, आप जैसे अभी आप मार्क जकरबर्ग की बात कर रहे थे, मैं स्टीव जॉब की भी बात ऐड करना चाहूंगा, वो भी सेम कपड़े पहनते थे। सेम पहनते थे। It's not Steve Jobs. There are Warren Buffett is the person behind. There are so many person. You must have heard the person Nikola Tesla. Science में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई handsome बंदा है. He was awarded the most handsome person of the world, right? Most handsome person of the world. However, he never changed his outfit. बट इसके अंदर सर थोड़ा सा क्रेडिट ना इंडिया को भी जाता है। अगर आप स्टीव जॉब की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो इंडिया आए थे, एंड ही वाज देयर इन सम पार्ट ऑफ यूपी, सम पार्ट ऑफ बैंगलोर, एंड उन्होंने बड़ा मॉन्क्स के साथ बड़ा इंटरेक्ट किया। तो ही यूज्ड टू सी कि मॉन्क्स जो है हमेशा ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के क्यों रहते हैं। तो मैंने इनकी ना स्टोरी पढ़ी कि ये क्या है, मतलब चलो हमारे मॉन्क्स अभी जैसे गगन सर कह रहे थे कि एक राजा नकली भी पहन ले तो वो असली है ना, वैसे ही इंडिया के हमारे जो अपने मॉन्क्स हैं वो ये प्रथा तो पता नहीं हजारों सालों से चली आ रही है कि वो एक ही टाइप के कपड़े पहनते हैं, विच सेज कि एक तो जैसा आपका ऑरा है उसको रिफ्लेक्ट करता है, सेकंड इट सेव्स मनी, थर्ड इट सेव्स योर टाइम एंड एनर्जी टू थिंक अबाउट कि मेरे को आज क्या पहनना है। तो वरुण सर, मतलब आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल ऑफ योर डिग्निटीज, यू नो आई नो द वैल्यू ऑफ योर टाइम आल्सो, और आप लोगों ने इतना टाइम दिया। लेकिन सेशन को खत्म करने से पहले वरुण सर, आज मुझे ये पता चला कि आपकी टेक्सटाइल नॉलेज बहुत जबरदस्त है, आपको फाइबर्स की नॉलेज बहुत ज्यादा है, और इतने साल आपके साथ काम करने के बाद मुझे इतना नहीं पता था कि आपको टेक्सटाइल के बारे में इतनी नॉलेज है। यस, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जितना भी मतलब 90% ऑफ इट ये मेरा आज का ही थोड़ा बहुत रिसर्च था। अच्छा, क्या क्या करना है, कैसे करना है। आई वांटेड कि यार जब भी हम लोग इस सेशन पे आए या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आए, देखिए बहुत सारी चीजें डिग्रेड हो रही है और बहुत फास्ट हो रही है। करेक्ट, राइट, ठीक है। सो वी हैव टू एक्ट, और हमें जिस भी प्लेटफॉर्म से जिस भी नंबर ऑफ पीपल से कनेक्ट करने को मिले, वी शुड मेक देम अवेयर दैट this is planet Earth, this is our only Earth, we don't have any other planet till now. People are thinking we will go and plant plants on Mars. Arey, why don't you put plants here? Where do you live? तो वरुण सर, मतलब जैसे मेरे दिमाग में हमेशा क्वेश्चन आता है, तो why rugged jeans are so much costly? उसमें तो आधा कपड़ा नहीं होता। Jeans are so costly. जी सर, ये सर देखिए, उसमें तो मतलब कपड़ा, उसमें तो कपड़ा भी कम है, कपड़ा भी कम है। सर मैं तो एक और एग्जांपल, मैं इसमें एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा जी। आप कभी सर रिसेंटली, अब तो बेटी बड़ी हो गई है, कभी अभी रिसेंटली जाइए किसी बड़ी अच्छी, जैसे यूसीबी वगैरह भी अब बच्चों के कपड़े बनाने लग गए हैं। तो, कुछ दिन पहले ही मतलब मेरे साले साहब को बेटा हुआ, तो हम लोग उनके लिए कपड़े लेके गए। तो मैं यूसीबी वगैरह यही पास में ही था, मैं कहा चलो यार यहीं से लेके चलते हैं, तो गिफ्ट वगैरह एकदम अर्जेंटली लेना था। आई वेंट टू द शॉप एंड वो मेरे ख्याल से वो इस कप से भी छोटी उसकी निक्कर थी और इतनी उसकी टी शर्ट थी। एंड आई आस्क्ड द प्राइस कि कितने का है। मैं कहा होगा यार, कितने का होगा? यू विल नॉट बिलीव, जितने की हमारी एक नॉर्मल जीन्स आती है, इट इज द सेम कॉस्ट दैट दे आर चार्जिंग। कंपनी जो आप कह रहे हो कि सर रग्ड जीन्स है, सर ये वही है जो कॉलोनियल टाइम में होता था हमारे साथ, हमारी चीज प्रोसेस करके हमारे को वापस घुमा के महंगे प्राइस पे दे दी जाती। वरुण सर, अक्षय सर, कभी कभी जब हम अपने फैमिली फंक्शन में कुछ ऐसी जीन्स पहन लेते हैं ना, तो बड़े बुजुर्ग पता है मामा लोग क्या चढ़ाते हैं, ये तुम्हारी जीन्स फट कैसे गई भाई, उसको ठीक करा लो। एग्री सर। जैसे जनरेशन गैप होता है वैसे ही फैशन गैप भी आता है। फैशन गैप भी है। जो सौरभ सर जो हम पहन रहे हैं, अगर वो मान लो लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा जी, कि भाई ये कहते ना कि जो खाओ जो मन भाए, पहनो जो जग भाए, ऐसे हमारे बुजुर्ग कहते हैं, अक्षय सर आज भी। तो जो जैसे मान लो एक बच्चे ने कोई पहना हुआ कोई ऐसी चीज जो अच्छी नहीं लग रही है उसको, तो क्या उसे हम फैशन कहेंगे? अब मान लो हमारे जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे आप घर रहते हो, आप अपना पड़ोसी कैसा देखना पसंद करोगे, है ना? अगर मान लो आप अपने पड़ोसी से भी पूछो। नहीं, सुनो, अगर आप अपना पड़ोसी कैसा देखना, मान लो एक पड़ोसी, एक घर में एक ऐसा पड़ोसी है जो बहुत ही मॉडर्न है, बहुत ही जो समाज को मतलब जैसे गलत प्रेरणाएं दे रहा है, और एक ऐसा पड़ोसी है जो मतलब कि एकदम
एटिकेट्स वाला है, राम भक्त है, इस टाइप का। तो हर व्यक्ति ऐसा पड़ोसी चाहता है कि जहां पर उसको एक एटिकेट्स आए, एक मतलब फैशन, मैं फैशन के खिलाफ नहीं हूँ सर, मेरे को शायद आस्था मैम गलत ले गई होंगी, मैं फैशन के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो फैशन खुद अपने घर में बहुत इसको, जहाँ जो फैशन नया आ रहा होता है मैं तो वो पहनता हूँ। और जो फैशन आज भी देखो, मेरे ऐसे कई स्वेटर है जो मम्मी ने बुन के रखे हुए, मैं नहीं पहनता उन्हें, मुझे नहीं अच्छे लगते वो, लेकिन मम्मी की आदत रोज है कि वो जरूर बुनती रहती है उन्हें। तो कहने का मतलब ये है कि मैं फैशन के खिलाफ नहीं हूँ, बस मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ऐसा कोई फैशन ना हो सर, मेरा लास्ट ही बोलना है, जो सार्वजनिक मर्यादा को मतलब ना लांगे। बस ये मेरा है, इस पर हो सकता है मेरे विचार कईयों से नहीं मिलते हो, ये मेरा स्टेटमेंट है। बिल्कुल। हाँ बस नहीं, आप सबके व्यूज को मतलब मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। एंड सेशन को जी वरुण सर जस्ट एक पॉइंट, जस्ट टू ऐड गगन सर पॉइंट। सर पहले क्या होता था ना कि पहले एक गांव होता था जिसमें 300-400 घर होते थे। तो वो धीरे धीरे 300-400 के 3000 4000 घर बन गए, और ऐसे करते करते सिटीज में कन्वर्ट हो गया। तो तब क्या होता था सर कि वो एक गांव जो होता था उसको एक घर की तरह माना जाता था कि यार ये पूरा एक घर है, ये भाई है, ये बहन है। सर ये तब चीजें ना बहुत इजीली करी जा सकती है। आज के परिप्रेक्ष्य में मुश्किल है थोड़ा। हाँ, ये अब बड़ा मुश्किल है, अब मुश्किल क्योंकि आपको पता ही नहीं कौन कहाँ से आके रह रहा है, कौन कहाँ से आके। सही बात है। नहीं, और उसकी क्या थॉट प्रोसेस है, उसके वहां पे शायद ये कपड़े अच्छे हो, आपके यहाँ ना हो। जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इस मामले में। आस्था मैम, one last message to entire India according to you, any message to entire Indian kids? सर मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगी, एंड आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन बीइंग योरसेल्फ। आपको जो लगता है, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, मेरे हिसाब से आप वो पहनिए। आप अपने कॉन्शियंस के हिसाब से चलिए। एक बार सोचिए कि क्या जो इस समय आप पहन रहे हैं या जो आप दुनिया को इमिटेट कर रहे हैं, क्या आप खुद वो चाहते हैं? जी। आप भले ही बहुत सपोज 5000 की एक शर्ट खरीद के आए, क्या अगर कोई दुनिया में आपको ना देखे कि ये 5000 के या 500 की है, एक बार अपने मन में सोचिए कि आप कौन सी लेंगे, अगर वही आपको 500 रुपए में मिल रही है तो। मतलब इतना दूसरों के पीछे भागना, इतना सोसाइटी के पीछे भागना कि मुझे ऐसा दिखना है, मुझे ऐसा लगना है, आई थिंक वो आप पे एडेड बर्डन ही डालेगा। आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आने वाले टाइम में। पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, तो अपने आप को, अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दीजिए। जो आप पहनना चाहते हैं, मैं बिल्कुल किसी चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ कि आप ये पहनिए या ये पहनिए। फैशन की डेफिनेशन सबके लिए अलग है, लेकिन वो जरूर पहनिए जो आपका दिल कहता है, जहाँ पर आपको एक एडेड बर्डन फील ना हो कि हाँ मुझे यही पहनना है क्योंकि सोसाइटी चाहती है। जी, मैं ये ऐसा जरूर मानती हूँ। थैंक्स अटेंड मैम। वरुण सर, विद दिस महामंथन लाइफ, एनी मैसेज टू इंडिया? सो मैसेज इज दिस, सेव अर्थ, सेव योरसेल्फ। हमारी ये जो धरती है वो माँ है, और माँ के साथ इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करते। क्या बात बहुत बढ़िया। जैसे हम लोग लगे हुए ना, बिल्कुल सर, ये भी एक्सपेरिमेंट करना है, वो भी करना है, सब कुछ करना है हमें, ये भी करना है, यही है, यही रहना है, और इसके अलावा और कोई जगह नहीं है। अदरवाइज नेचर जब सेलेक्ट करती है तो आप सब देख ही रहे हो 2 साल से नेचर भी कैसे सेलेक्ट करती है। जब नेचर अपने पे आती है तो फिर आपको पता ही है कि कोई कुछ नहीं बदल। आज जो हो रहा है, एवरीथिंग, वायरस इज नथिंग। हम अपने सब्जेक्ट में बच्चों को बोलते हैं वायरस इज इनविजिबल पावर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप सोचो, और जब नेचर अपना बदला लेती है तो आप देख सकते हो क्या करती है। अक्षय सर, जी अक्षय सर, देश के नाम कोई संदेश? अक्षय सर, गगन सर, देश के नाम कोई संदेश विद दिस महामंथन लाइफ? बिल्कुल बिल्कुल सर, जो वरुण सर ने कहा वही है, बिल्कुल। सेव अर्थ, सेव योरसेल्फ। और नेचर से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए हमें, और नेचर से खिलवाड़ करेंगे तो देखो सर, जिस तरह से अब ना चमगादड़ खाना भी एक फैशन बन रहा था चाइना के अंदर, पता चल गया ना सबको। जी जी पता चल गया सबको कि चमगादड़ खाने से, अगर मतलब हम तो ऐसे सोच रहे हैं जो चाइना किस तरह कर रहा है, वो अपने आप को फैशन के नाम पे पता नहीं क्या खेल रहा है फैशन से वो। और आज अगर वो नेचर से खेलने लग जाएगा तो इस टाइप के वायरस पैदा होंगे। और आज जिस तरह से हमारा देश जूझ रहा है, तो आप समझ सकते हैं, हम सबको इस चीज को समझना है। जैसे वरुण सर ने कहा, वही मेरा पॉइंट है, सेव अर्थ, सेव योरसेल्फ। थैंक यू सर, थैंक यू। अक्षय सर, विद दिस महामंथन लाइफ, एनी मैसेज टू इंडिया? Sir, only last statement, like
Your voice is breaking. आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है सर. हाँ. Be yourself, agree करता हूँ आस्था मैम से Okay. कि जो हम हैं that we have to do. कोई फर्क नहीं पड़ता कोई हमारे लिए क्या. There was a power cut off at my home, so we can just conclude here. जी. So once again, thanks a lot for your presence here, Astha ma'am. From a bottom of my heart, thanks a lot for your for your precious time, for this session. Varun sir, thanks a lot कि आपने कम से कम 1 घंटा आज इस सेशन को दिया और अपने इतने सारे इंपॉर्टेंट आइडियाज पूरे इंडिया को दिए. Thanks a lot Akshay sir for your presence here, and Gagan sir, really I just want to appreciate कि आप हर सेशन में इतना अच्छा एक मतलब अपने आइडियाज को, थॉट प्रोसेस को पूरे इंडिया तक पहुंचा रहे हो. एंड डेफिनेटली आप सबके सपोर्ट से हम डेफिनेटली बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और पूरे इंडिया और इंडिया से बाहर हर एक कंट्री तक अपने आइडियाज को हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे. आपका एक आइडिया अगर किसी 1% जनता ने अगर सीरियसली ले लिया तो आप समझ सकते हो कि एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आ सकता है. राइट. 100 से पहले स्टार्टिंग 1 से ही होती है. 100 तक पहुंचेंगे जब हम शुरुआत 1 से करेंगे. राइट. सो वंस अगेन on the behalf of Biomanthan, on the behalf of Mahamanthan, thanks to all of you for your presence here. Thank you once again. Thank you so much sir. Thank you. बहुत बढ़िया सर.